the Ampoulan concept. Okay, so interesting rather than your organic remaining part. Okay, so why this one is a very one can say a very known and very interesting part in the field of organic synthesis. Okay, so Ampoulan concept basically is simply called as reversal of polarity. So that Ampoulan concept is also be called as a reversal of polarity. So I will give the simple example, reversal of polarity. Then what is that polarity now? Those molecules have electronegative difference in their bond. They shows the polar character. Okay. So example, I have this carbon halogen. You know that carbon halogen bonds is a polar bond. So why this is a polar bond? Appear the Due to charges. You know electronegativity that, difference. yes, because of electronegativity difference, particularly here halogens are more electronegative. So obviously they tend more minus effect, and this will be what? The electropositive character. That means the carbon here is act as a source of electrophile, and here halogens have the rich part particularly here. So this is a natural phenomenon. This is what? Natural. Now then what is that reversal of polarity now? The reversal of polarity means we are changing the polar character of carbon, okay, by adding something. Then what is that now? So that natural phenomena is as shown in this CX, but whenever I have this Grignard reagent, carbon, magnesium and halogen, now everything is changed now. So Victor Mayer Grignard compound, that compound is called as compound, which is very large, very applicable in the field of organic chemistry for making carbon-carbon bond. Okay, and here this carbon is acts as a what? Negative charge. This will be your positive. This will be your negative. So this one, and this is actually called as a reversal of polarity. Now you can simple consider. You can simple observe here. Previous carbon is electrophilic character, but in second structure carbon is nucleophilic character. Okay, so now and such a type of the phenomena where the polarities get changed, and that that concept is called as what? The Ampoulan concept now. Okay, now then what is the Ampoulan concept now? That Ampoulan concept is simply a reversal of polarity now. So here this one is act as a source of what? Electrophile, this one, and here in that case it one is this one is act as a source of nucleophile. So whenever changing the polarity or polar character, changing the polar character particularly, so it changes the all chemical one can say the properties of that compound. Okay, and then that's why Ampoulan concept is very useful to change the polar character of what? Any carbon. Okay, so in generally you know that naturally you can observe here naturally what simple carbonyl compound, you know that this one carbonyl compounds are of which character? This one. Simple carbonyl compounds are of which character? As per the resonance concept. So what is the character of carbonyl carbon? Yes. Del positive. So it becomes what? The negative, and it becomes what? Previously it is what? The so this compound. So your carbonyl carbon is always electrophilic. So this one is and as a neutral electrophile. This one is act as a what? Neutral electrophile. So in Ampoulan concept, carbonyl carbon now it behave as a neutral electrophile. Now we are going to change that electrophilic character to nucleophilic one, and that is called as Ampoulan concept. That means we are going to change. हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? इस कंपाउंड को इस तरह से चेंज करेंगे जिसकी वजह से इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या आना चाहिए? आपका नेगेटिव आना चाहिए, and that will be the what? The source of what? Nucleophile. क्या हो जाएगा ये? Source of nucleophile. समझ में आ रहा है आपकी क्या शुरू है? Are you getting? Yes. Okay, so then basically what is that Ampoulan concept now? So it is a reversal of polarity now.
So where we are changing the polar character of a simple carbonyl compounds. Okay. Okay. So the chemistry of diethane. Second one is and third one is enamine. Now, out of these three, now first of all we'll discuss the diethane. So diethane is nothing but the chemistry of particularly this is the compound where we can develop from here. So this is propane 1,3,1,4 dithiol. Okay, when it combined with any carbonyl compound, so like this one, in the presence of what any salt, mercuric salt particularly, or simple one can say an acid, so it will form a diethane. So and here this will be like this one, but here should be a one active hydrogen is there. Now this is that's compound is called as a diethane now, and that selected hydrogen which is acidic one. Okay, now what is halide? Now halides are nothing but the 1,2 dipolar molecule, 1,2 dipolar molecule where the negative charge is present on the carbon and positive charge is present on heteroatom. Heteroatoms are nothing but here either phosphorus or either nitrogen. So here X. Okay, type of the structures are called as a halide. And what is enamines now? Enamines are nothing but the in plus amine. So what is that in now? This is in and this is nothing but the what amine. So such a type of a three very important compounds in this chapter, and that basically is are very important. जो फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है वो तीनों के तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए में किए जाते हैं. ठीक है. तो पहले अपन बात करने वाले कि डाइथाइन कैसे बनाया जाता है और उसमें ही क्यों एसिडिक प्रोटॉन आता है. ठीक है. और उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले एलाइड क्या होता है. फिर उसमें दो एग्जांपल है आपको, एक है फास्फोरस एलाइड है और दूसरा आपके पास है सल्फर एलाइड, जिसको अपन ने स्टार्क इनामाइन रिएक्शन के नाम से. Now, first of all, what is the chemistry of what that diethane? Okay, so write down the heading: chemistry of diethane. Now, you know that particularly this 1,3-diethane जो मैंने बताया ना कि वो कैसे आपका डेवलप हुआ या क्यों उसको लिया गया रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में पर्टिकुलर. ठीक है. तो कंसेप्ट कहाँ से आता है देखो कि ये जो कंपाउंड है ना अपना एसिटल्स, आपको पता होगा एसिटल्स. डाइथाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरली दे आर रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस वन. सो दिस इज अ सल्फर एंड सल्फर अटैच विद दिस कार्बन. यहाँ पे मैंने सपोज ये दोनों हाइड्रोजन लगाए और एक सेम कंपाउंड में निकालता हूँ जिसका नाम है एसिटल. एसिटल, कीटल वगैरह वगैरह जो भी. एसिटल का मतलब क्या होता है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, दिस वन. सो ये दोनों कंपाउंड में सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम ही दिखता है. बट ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो दो सर्कल किए, इनमें से एक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है और वो हाइड्रोजन अगर हम निकालते हैं वहां से तो सो दैट डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन. फिर कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक रहेगा? सो व्हाट विच फैक्टर्स आर डिसाइडेड टू रिमूव दैट हाइड्रोजन? ये कैसे पता चलेगा हमको? तो ये पता चलता है कि द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. तो पीके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक बिहेवियर. ठीक है. जब पीके इन दोनों का निकाला गया तो तब ये पता चलता है कि सो हियर पीके इज लेस, पीके वैल्यू इज लेस और यहाँ पे जो है आपका पीके वैल्यू जो है आपकी वो मोर.
चलिए मैं पीके तो ठीक है, एक जनरल, वो तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, निकालने के बाद पता चलता है, बट होता क्या है यहाँ पे? सो लुक एट दिस वन. सो बाय रिमूविंग दिस प्रोटॉन पर्टिकुलरली, सी हियर देयर इज अ जनरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कौन? नेगेटिव. और यहाँ पर भी क्या आएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. प्रोटॉन हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. अब सवाल ये आता है कि उस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? अगर वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबलाइज होता है? जब उसको विड्रॉअर लगेंगे, तब विड्रॉइंग सब्सटेंस अगर लगेंगे उसको, तब आपका वो ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी होगी वहां पे. तो फर्स्ट और सेकंड केस में बहुत डिफरेंस है. फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में आपका सल्फर है जो कि माइनस इफेक्ट दिखाता है, बराबर है. सो कार्बन इज अटैच टू टू सल्फर is have greater minus I effect, and that's why the carbon is more and more deficient, and so it will loses proton easily, बराबर है. So in the presence of only strong base, it can remove the proton. In the second compound, what will happen? In the second compound, carbon is attached with oxygen now, so there is a electron donation will be takes place now, while in the sulfur, in case of the sulfur, there is electron withdrawal is there now. तो सबसे पहले ये बात समझो आप, जो ग्रीन मैंने जो लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे सल्फर क्या कर रहा है? कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? माइनस इफेक्ट दिखा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो कोई भी बेस जो है, कौन सा बेस? कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आसानी से प्रोटॉन को निकाल सकता है वहां पे. एंड द नेगेटिव चार्ज जो भी जनरेट हो जाएगा वहां पे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए सल्फर है वहां पे. और सल्फर के पास क्या होता है? सल्फर के पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल. क्या होते हैं सल्फर के पास? वैकेंट डी. सो द स्टेबलाइजेशन मोर इफेक्टिव, बराबर है. बट इन सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकंड स्ट्रक्चर में एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो कोई किसी इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है. ऑब्वियसली वो वहां पे जो कंसेप्ट आपका होगा, या आप प्रोटॉन निकाल भी लेते हैं ना, तो वो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं उससे. सो दैट इज द डिफरेंस नाउ. And due to that reason only we can remove the easily the proton from diethyene, not from acetal, not from the acetal. So this compound is only for protection of carbonyl. कहां पे यूज कर सकते हैं इसको? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बन. एक मेरे पास क्या है? अल्डिहाइड है, और एक मेरे पास कीटोन. ठीक है, मुझे क्या करना है? सिर्फ अल्डिहाइड को, मेरे पास अगर LH अगर है तो LH क्या करेगा? LH तो दोनों से रिएक्ट हो जाएगा, दोनों को. यस सर. और दोनों को रिएक्ट करेगा मतलब दिस विल बी H, ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर भी मेरा OH हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है. बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ किसको रिड्यूस करना है? मुझे सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, कीटोन को वैसे रखना है. फिर मैं क्या करूंगा? देन आई विल डू द फर्स्ट प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन का मतलब होता है मुझे ग्लाइकॉल वगैरह यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करना पड़ेगा? ग्लाइकॉल्स या जो भी डायल होते हैं वो यूज करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. अब क्या हो जाएगा? ये आपका सबसे पहले जाएगा कहाँ पे? ऑक्सीजन पे. कौन से? कीटो वाले. सो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा रहेगा? दिस इज व्हाट अल्डिहाइड, एंड रिमेनिंग हियर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये वाला मिल गया. हो गया प्रोटेक्शन उसका. अब मैं LH डालूंगा इसके ऊपर, और LH cannot reduces ether, LH only reduces the aldehyde. सो मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे वो मिलेगा. सो यानी कि मुझे अल्डिहाइड मिल गया, और रिमेनिंग जो चीज है वो मैं वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, जो भी रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एक्सेट्रा. अब मुझे वापस से मेरा इसको प्रोटेक्ट डीप्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा. जब जैसे हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा? ये OH हो गया, और मेरा कीटोन का कीटोन वापस आएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका जो एसिटल है, ये जो ग्रुप है ना, जिसको अपन एसिटल बोला है ना, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है. दिस इज ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइट, प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनेट्स. यहाँ पे अगर आपने डाइथन यूज किया ना, तो डाइथन कुछ अलग केमिस्ट्री दिखाता है. बट एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि डाइथन को अगर आप यूज कर रहे तो यहाँ पे हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है यहाँ पर. सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर डाइथन और एसिटल में क्या डिफरेंस? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कार्बन के साथ अटैच होने के बाद प्रोटॉन तो निकल जाएगा वहां से, कोई स्ट्रॉन्ग बेस आके आ जाएगा, प्रोटॉन निकाल लेगा, बराबर है.
और प्रोटॉन निकालने के बाद क्या हो रहा है, बेसिकली वहां पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये आप रिएक्शन देखो, सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ आइडिया. लुक एट दिस वन. सपोज मेरे पास कौन है, एसिटाल्डिहाइड है. आई हैव दैट एसिटाल्डिहाइड CH3COH एंड CH3COH. दो मैंने कंपाउंड ले लिए किसके, एसिटाल्डिहाइड. और इन दोनों के साथ में जो है मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ किसकी, एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला है, सो डाइथाइन SH ये वाला. और यहाँ पे मैंने जो लिया है वो लिया है डायन. ओके, दिस. इसको भी मैंने एसिड के प्रदेश में ट्रीट किया, इसको भी मैंने एसिड के प्रदेश में ट्रीट किया. क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हियर, ये मेरा पोर्शन उतना का उतना ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं. नेक्स्ट क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर सल्फर, ठीक है. नेक्स्ट टास्क क्या रहता है इसका, व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क. अब हमको यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस. व्हाट वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग बेस. हमने यूज किया कोई स्ट्रॉन्ग बेस. क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन यू यूज द स्ट्रॉन्ग बेस नाउ, इट फाइंड द एसिडिक प्रोटॉन. और एसिडिक प्रोटॉन कैसे डिसाइड करते हैं अपन, ऑन द बेस ऑफ पीके वैल्यू. सो जिसका पीके वैल्यू सबसे कम वो उतना ज्यादा एसिडिक. तो वहां पर दो ऐसे प्रोटॉन हैं, जो एक ये वाला एक ये वाला. बेस कहां से निकालता है प्रोटॉन, ठीक है, ये तो एसिडिक प्रोटॉन होने के बाद नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होगा वो स्टेबलाइज भी होना चाहिए. सो इस केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, तो स्ट्रॉन्ग बेस विल टेक द प्रोटॉन, नो डाउट. आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन बाय फ्रॉम द स्ट्रक्चर, जो नेगेटिव चार्ज बचता है आपका, सो दैट कैन बी स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द सल्फर. और इसलिए वहां का कार्बन ज्यादा स्टेबल है. बट इन द सेकंड स्ट्रक्चर व्हाट हैपन नाउ, दैट प्रोटॉन इज नॉट टू मच एसिडिक. दैट प्रोटॉन स्टिल देयर इज एन ऑक्सीजन, माइनस इफेक्ट वहां पे सबसे ज्यादा होना चाहिए. So that proton still is least acidic now because of the pK value. pK value बताता है, उसका रेफरेंस देखना तो आप नान्स में जाके दोनों का रेफरेंस दे सकते हैं कि दोनों का पीके वैल्यू कितना आता है, अलग अलग आएगा. और मैंने पीके का रिलेशन आपको बताया. सो दैट पीके जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी. ये वाला. तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले का वैल्यू पीके की कम है, दूसरे की वैल्यू ज्यादा है. एनीवे, अब प्रोटॉन निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आपका रहेगा वहां पे वो कैसा होना चाहिए, सो इट शुड बी स्टेबलाइज्ड. कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय, है ना, वो स्टेबलाइज अगर होगा तो ऑब्वियसली वहां का प्रोटॉन जाना चाहिए और जाएगा वहां का. तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो स्टेबलाइजेशन किसमें पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है, बिकॉज इन फर्स्ट केस व्हाट हैपन, सो देयर इज अ माइनस इफेक्ट इज मोर इन सल्फर देन व्हाट द ऑक्सीजन. अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, बट वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन उसको देने की कोशिश करता है, किसको, उस नेगेटिव चार्ज. और ऐसे तो स्टेबिलिटी होती नहीं है, ये होना चाहिए इधर, क्योंकि उसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल. एंड दैट्स व्हाई that carbanion which is developed in that diethane which is more and more, one can say the stabilized, okay, then what the second. इसीलिए जो acetal या ketal जो होते हैं ना, so they are only used for protection of carbanion. acetal and ketal प्रोटेक्शन. बट इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो पहला देखो, अब मुझे बताइए सबसे पहले जो स्टार्टिंग आपका कार्बोनिल कार्बन था वो कैसे था, वो था इलेक्ट्रोफिलिक. कैसे था वो, इलेक्ट्रोफिलिक. देखो क्या हो गया, अब क्या हो गया, लास्ट स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये क्या हो रहा है, और ये बेसिकली है क्या, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ रिवर्स. पोलैरिटी. इसको क्या बोलेंगे हम, इसको ही रिवर्सल बोला ऑफ जाता है पोलैरिटी. reversal. और इसीलिए डायथाइन को यूज किया जाता है एज ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल. वी आर चेंजिंग द पोलैरिटी. अब वो जो आपका नेगेटिव चार्ज बना हुआ है उस पे हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है. विल सी द वन सिंपल रिएक्शन. ओके, अंडरस्टूड. यस सर. ओके, नाउ विल टेक द वन मोर एग्जांपल. एक एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे, कौन से वाला, चलिए मैं एक लेता हूं यहाँ पे. और हमेशा एक हाइड्रोजन होना जरूरी है वहां पे, नहीं तो फिर कुछ काम की बात नहीं. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 1,3 डायथाइन. क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 1,3 डायथाइन. सो
और यहाँ पे मेरा कोई एसिड प्रेजेंट रहेगा, ये क्या बनेगा यहाँ पे 1,3 डाइथाइन नहीं है वो, थायोल लेना पड़ेगा पहले आपको। क्या लेना पड़ेगा, या आप अगर स्ट्रक्चर निकालना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर निकालिए इसका, SH ओके एंड व्हाट हैपेंड हियर नाउ, सो वी आर यूजिंग नाउ एसिड। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा इधर आपका, सो सबसे पहले तो आपकी वो रिएक्शन हो जाएगी दोनों की, और आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल वाला, मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, ठीक है ये वाला। अब जनरली बेस हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का है N-ब्यूटाइल लिथियम या सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड माइनस, ये वाला टेम्परेचर रहेगा। उसमें क्या हो जाएगा, वहां से पहले सबसे पहले प्रोटॉन निकाल लेगा। सो आफ्टर रिमूविंग द प्रोटॉन, नाउ दिस इज सल्फर सल्फर, so now your carbon becomes a negative charge, and that is your what source of that is the ampolanga. अब ये नेगेटिव चार्ज पे हम जो इलेक्ट्रोफाइल लेना है वो ले सकते, यू कैन टेक एनी इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल रिएक्शन तो हमारी ये रहेगी, यहाँ पे मैं एक सिंपल इलेक्ट्रोफाइल लेकर यहाँ पे रिएक्शन को फिनिश कर। तो अब इस रिएक्शन में देखो डायथाइन दोनों के लिए यूज करते हैं अपन, कौन कौन से इसके लिए, एक तो हम अम्पोलांग के लिए भी यूज करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं इसको, ठीक है ये हो गया ऐसे। अब मुझे इसको वापस मेरे इसमें लाना है, वापस मुझे कार्बनिक कंपाउंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका सल्फर को ब्रेक करना है तो मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। सो फॉर ब्रेकिंग दैट सल्फर, रिमेंबर ऑलवेज दिस, सो वी हैव टू यूज द Hg+2 सॉल्ट, मर्क्यूरी डाइक्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, उसको हाइड्रोलिसिस करता है ना, मर्क्यूरी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करता है, जिसकी वजह से आपको बैक टू योर कार्बनिक कंपाउंड एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। नाउ look at the starting material, look at the product. Now what is electrophile now, so you can use electrophile means what, you can use anything। क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे, yes क्या क्या ले सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जगह, yes anyone, which species is used instead of that electrophile now, I am audible, Yes, sir, you are audible. so इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे क्या क्या ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे हम ले सकते हैं ये वाला कंपाउंड, जो लगाना है आपको लगा सकते हैं, हम DMF यूज कर सकते हैं, हम सीधा सीधा H+ ले सकते हैं, हम CO2 यूज कर सकते हैं, हम COCl यूज कर सकते हैं, हम एस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज एनी कार्बोनाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल, so that many things we can add it to that structure now, and you will get the same, you get the what substituted product in form of what the E now, that means we can lengthen the chain, यानी कि हम कार्बन कार्बन की लेंथ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। so this is the best example of which reaction, क्या कर सकते हैं हम इसमें, CC बॉन्ड बना सकते हैं नया, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में आपकी, टेक दैट अल्डिहाइड, पर्टिकुलरली जनरली हम क्या करते हैं अल्डिहाइड यूज करते हैं, क्योंकि हमको ये वाला हाइड्रोजन बहुत जरूरी होता है। सो टेक दैट अल्डिहाइड एंड रिएक्ट विद व्हाट 1,3-dithiol, it will be combined in the presence of acid, it becomes a 1,3-diethane, again still one acidic proton is there now. So any strong base that can easily abstract the proton and generate the negative charge, so negative charge कहाँ पे, यहाँ पे, that negative charge is means source of nucleophile, it can easily combine with any electrophile, you can get the product। अब हमको सल्फर निकालना है इसमें से वापस, हमने दो तरीके से यूज किया है इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एज ए प्रोटेक्शन बोल के भी यूज किया, प्रोटेक्शन भी हो गया ना उसका कार्बनिक ग्रुप का, एंड दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो भी वर्क फॉरवर्ड द अम्पोलंग, यानी कि दो पर्पस के लिए हम जनरली डाइथाइन को प्रोटेक्शन एज वेल एज। इसके पहले का जो आपका एग्जांपल था एसिटल, उसमें सिर्फ एक ही बार इसको यूज कर सकते थे, एसिटल में हमने क्या यूज किया था, एसिटल सिर्फ एक ही बार यूज होता है एज ए ओनली प्रोटेक्शन, नॉट फॉर अम्पोलंग। तो आप हाइड्रोलिसिस करना है आपको किसके प्रदेश में, हाइड्रोलिसिस इन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, बिकॉज सल्फर हैव ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड मर्क्यूरी, सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, एंड अल्टीमेटली यू कैन लेंथन द चेन नाउ, एंड दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। Yes, sir. अब आपको कहीं पे भी रिएक्शन जो है आप आसानी से जो है रिएक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिएक्शंस को बना सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी थिंग्स आर देयर टू कैन डेवलप नाउ, ओके। और एक रिएक्शन में आपको बताऊंगा, वापस हम कार्बनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। सपोज एग्जांपल मुझे ये करना है,
Now look at this one. So I have this compound and want to prepare this one. अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, what are the required material for this process? क्या लगेगा मुझे यहाँ पे, क्या लगेगा, how है ना। अब जैसे मेरे पास तीन अलग अलग रिएक्शन लिखता हूँ, चलिए फॉर्माल्डिहाइड से आप पहले एसिटाल्डिहाइड बनाओ और एसिटाल्डिहाइड से आप जो है वो एसीटोन बनाओ। कितने बार रिएक्शंस करनी पड़ेगी और कैसे करनी पड़ेगी, क्विकली बताइए जरा। Sir, firstly we have to use diethol to convert it. Oh, okay. नेक्स्ट आपको रिएजेंट क्या क्या लगेंगे, पहले तो आपको करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, पहले कन्वर्ट करा मतलब आपने क्या किया, पहले आपने बनाया होगा ये पर सल्फर H और H, ठीक है, पहले आपने ये बनाया, फिर इसके ऊपर हमने कौन सी रिएक्शन की है, इसके ऊपर हमने रिएक्शन की है किसकी, मिथिल आयोडाइड की, बराबर है। तो लेकिन आपको पहले यूज क्या करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, एन-ब्यूटिल लिथियम यूज करना पड़ेगा, बेस यूज करना पड़ेगा, पहले प्रोटॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैच हो जाता है तो आपका एक H रहेगा, एक मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं वापस से वही रिएक्शन करता हूँ, कौन सी, एन-ब्यूटिल लिथियम THF माइनस 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और मेरा दूसरा रिएजेंट क्या रहेगा उसमें, मिथिल आयोडाइड। तो जैसे मैं इसका ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सल्फर सल्फर, यहाँ पे भी मिथाइल हो गया, यहाँ पर मिथाइल, लेकिन मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिला क्या मुझे, नहीं। मुझे क्या करना होता है, आई हैव टू हाइड्रोलाइज इट। अब इसके दो तरीके, हमने रिडक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको मर्क्यूरी के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरी सॉल्ट यानी कि HgCl2 के प्रेजेंस में अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो मुझे मेरा वापस कार्बोनिक कंपाउंड मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन डी प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन हमने एक और एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम है हेट्रोजिनोलिसिस, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड। तो ये कौन काम करता है, ये काम करता है रानी निकेल। कौन काम करता है ये, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रानी निकेल, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब रानी निकेल अगर आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सो इट ब्रेक इनटू दिस वन, तो दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों टूट जाएंगे, और दोनों टूट जाते हैं बेसिकली, सो व्हाट विल बी गेट नाउ, इट इज गेट दिस कंपाउंड एंड दिस इज रानी निकेल H2, और H2 लग गया यहाँ पे आपका, सो इट इज सेम रिएक्शन एज वोल्फ फ्रिशनर, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना नीचे वाली, कौन सी वाली, ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ वाली, इसको बोलते हैं मोजिंगो रिडक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको डाइथाइन पे क्या यूज करना है इस पे डिपेंड है। अगर हमने मर्क्यूरी का सॉल्ट यूज किया वाटर के प्रेजेंस पे तो वापस से कार्बन आई, if we use the Raney nickel because it break the carbon hydrogen bond, carbon heteroatom bond, so it will be converts into the hydrocarbon, हो गया है, ठीक है। यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे हमारा वापस से कार्बोनिल ग्रुप आ गया। So this is very interesting, we can transform, देखो पहले क्या था हमारा फॉर्माल्डिहाइड, फिर क्या बनाया हमने एसिटाल्डिहाइड, फिर क्या बनाया हमने एसीटोन बनाया। So you can form a many several compounds from only, but the requirement is there should be a acidic hydrogen, यहाँ पे एक तो भी हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मैंने इस कंपाउंड पे करने का सोचा तो क्या होगा, क्या इस कंपाउंड पे अगर मैं सोच रहा हूँ तो होगा क्या, इस कंपाउंड से नहीं होगा, उस कंपाउंड से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके प्रोटॉन है क्या, नहीं है उसके पास। सो रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स एंड डू योर जॉब, ओके। सो आपको क्या दिया जाएगा, सो लुक एट दिस वन, व्हाट वी हैव टू गिवन नाउ, कि आपको मटेरियल क्या दिया जाता है। सो आई विल गिव द शॉर्ट रिएक्शन, लुक एट दिस वन, सो दिस इज फॉर्माल्डिहाइड and okay, the next task is what, this one are required now. First of all 1,3 dithiol, ये लगेगा पहले in the presence of acid। दूसरा क्या लगेगा, दूसरा आपका कौन, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मैं कौन ले सकता हूँ, एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है ये वाला RCH2X, ठीक है। आप अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथा मुझे वापस से लगेगा मर्क्यूरिक सॉल्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरा, में देखो ये ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। कितना टाइम लगता है इसको, जब तक बताते तब तक तो आंसर निकल जाता तुम्हारा, ऐसा है। और फाइनली जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका मेन प्रोडक्ट आपके हाथ में हो जाएगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, दिस इज आएगा आपका
चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, बस इतना करना, ऐसे आपको करना है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, बट जस्ट वी हैव टू डू द ऑल स्टेप्स। ओके, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उसके हिसाब से आप फटाफट इसको कीजिए। तो बेसिकली व्हाट इज द डम्पोलॉन्ग नाउ, अगर आपको बताना है कि डिफाइन द डम्पोलॉन्ग नाउ, सो इट्स सिंपल, इट इज अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी नाउ, बट रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब डम्पोलॉन्ग होता है, ये भी सही है, इट इज जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन टू न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। क्या हो रहा है इसके अंदर आपका, और इट इज कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ओके, एंड हियर द रिवर्सल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द डायथाइन, ओके, डायथाइल लेकर हम करते हैं। कई सारे एप्लीकेशन है इसके, कन्वर्शन ऑफ अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड विद वन मोर कार्बन, ठीक है, यानी कि फॉर्माल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से फिर एसीटोन, यानी कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि फॉर्माल्डिहाइड से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्माल्डिहाइड से, ठीक है, फिर एसिटाल्डिहाइड का हम एसीटोन कर सकते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट है आपका कि हम अल्डिहाइड से वी कैन कन्वर्ट अल्डिहाइड टू 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड टू 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये भी कर सकते हैं। द थर्ड वन, इट कैन कन्वर्ट्स अल्डिहाइड टू हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि आपके पास अगर अल्डिहाइड है हम उसको कर सकते हैं हाइड्रोक्सी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो मैंने आपको मोजिन को बताया उसमें क्या होता है, होता है, ठीक है। और भी मैं लिख सकता हूँ सिंपल, अगर फॉर्माल्डिहाइड है मेरे पास टू द साइक्लो कीटोन। चलिए अब वन बाय वन एग्जांपल बताता हूँ आपको फटाफट कैसे ले जाएंगे। ओके, सो राइट डाउन द एग्जांपल्स। सो टेक फर्स्ट फॉर्माल्डिहाइड, पहले ले लो कौन, फॉर्माल्डिहाइड, उस फॉर्माल्डिहाइड से आप डाइथाइन बनाओ। डाइथाइन कैसे बनाओगे, ये बना दिया तुमने, अब तुमको क्या करना है, इसमें से प्रोटॉन निकालना है, तो मैं यहीं पे प्रोटॉन निकाल के देता हूँ आपको, ये वाला सपोज, ठीक है, ये वाला। अब मैंने अगर प्रोटॉन निकाल दिया यहाँ पे तो मुझे